Hello students, welcome to Maluka Academy. We are continuing with the topic that is chemical reaction and equations. The topic is chemical reaction and equations. This is the first chapter of our 10th class chemistry. And we had completed all the way to this chapter. Let us just have a revision कि इस chapter के अंदर हमने क्या क्या revise किया, क्या क्या हमने read किया and what is left with this chapter. First of all, let me discuss with you that what were the topics that we came to read in this chapter. The first topic that we read in this chapter was the chemical equations or the chemical reactions. First of all, we dealt with definition of chemical reactions. Then we dealt with the questions related to the chemical reactions, that when do the chemical reactions take place, why do the chemical reaction takes place and how these reactions takes place. So basically this was the thing, and उसके बाद हमने देखा the balancing of the chemical reactions. Balancing of the chemical reactions. उसके बाद students we dealt with the thing that जब एक chemical reaction होता है, what are the conclusion of the chemical reaction? What changes do a chemical reaction makes when it takes place? Changes whenever a chemical reaction takes place. Then we read about the steps of balancing of chemical reactions. Steps of balancing. Then we dealt with some of the examples of practices of balancing the chemical reactions. Then we dealt with the types of the chemical reactions. And then ultimately the practical applications of oxidation reactions in our day-to-day life. In the day-to-day life. Coming with the definition of chemical reactions, we came about that whatever the chemical situation is, the symbolic representation of what the chemical constituent has exchanged with themselves. We talk about the chemical reaction. Chemical reactions are the symbolic representations which occur due to interactions between chemicals, interactions between the
chemicals. Basically, what are the chemicals? Chemicals are something that occur in our natural environment and surrounding. सभी अगर हम देखा जाए तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर सभी जो चीज़ें हैं they are constituting the chemicals only. Then the chemical structure, and उसके बाद we had countered that when the chemical reaction takes place. When the chemical reaction takes place, whenever there is a chemical interaction. Whenever there is a chemical reaction, chemical interaction, the chemical reactions are known to occur. Next is, why do the chemical reactions takes place? Because of the instability in their structure. Students, कोई भी चीज़ है जो अनस्टेबल होती है वो खुद को स्टेबल करना चाहती है, और खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकली इंटरैक्ट करते हैं. देन लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. इस चीज़ में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में भी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन की थी. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमने देखा था कि फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है, बट केमिकल रिएक्शंस आर द चेंजेस जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है. सो दैट वाज द थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस. वी नो दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. So उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर. वी हैव द टू थिंग्स बेसिकली, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स. The mass of products should be equal to the mass of reactants. ठीक है, इस चीज़ को हम एटॉमिक नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम से. सो वी कैन टॉक अबाउट द mass of products and reactants, mass of reactants, but we can also talk about number of atoms of products should be equal to number of atoms of the reactants. So इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने किया था कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो रिएक्शंस क्या है, हमेशा बैलेंस्ड ही होते हैं. मीन्स रिएक्शंस ऑलवेज अकर इन अ बैलेंस्ड मैनर नेचुरली. अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, it cannot occur. ठीक है, we can write in here that naturally all the reactions naturally occurring reactions are always balanced. Basically the reactions are always balanced only. ठीक है, unbalanced reaction cannot occur. Unbalanced reaction cannot occur. Then हमने देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो what do it results in? It results in change of state, change of color, change of temperature and evolution of some kind of gas. Change in state, color, temperature or release of some kind of gas.
ये हमने देखा था कि अगर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो क्या कर रहा है वो रिएक्टेंट्स की स्टेट को चेंज कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है उसके कलर को चेंज कर रहा है, या क्या कर रहा है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या तो वो हीट अप हो रहा है या फिर क्या हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है, हीट लॉस कर रहा है, या फिर इट इज रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ गैस। देन स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग के अंदर हमने देखा था that first of all we have to balance atom that is maximum in number। जो एटम मैक्सिमम है नंबर में उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू बैलेंस other atoms, then further we are going to change, we are going to check the leftover atoms and then उसको बैलेंस करते हैं and then cross check the atoms। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ दैट वी आर हैविंग अ केमिकल रिएक्शन ऑफ CaO प्लस CO2 दैट इज रिजल्टिंग इन CaCO3 एंड हीट। सो बेसिकली इस केस के अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज मोस्ट इन नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन हेयर इट इज 3, हेयर इट इज 2 एंड हेयर इट इज 1, सो हेयर इट इज 3। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि कैल्शियम का नंबर कितना है, उसके बाद मैं देखूंगी कि कार्बन का नंबर कितना है। ठीक है, अगर मुझे इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर ऑल्टर करना पड़ता है तो फिर मैं देखूंगी कि जो लेफ्ट ओवर एटम्स रह गए उनको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। Like let us check up the real reaction that is quicklime की। quicklime की जो reaction होती है that is CaOH2 plus CO2 results into CaCO3 plus H2O। तो students देखो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन है, we can check on the RHS and LHS। RHS के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है that is 4 and LHS में भी जो ऑक्सीजन है that is 4। then we are going to check Ca is 1, C is 1, Ca is 1 and C is 1। H यहाँ पे क्या है 2 in नंबर है and H यहाँ पे भी क्या है 2 in नंबर है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर में ऑल्ट्रेशन करना पड़ता, लेट्स से I have to multiply the oxygen with 2 to make it 8। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी, बाकियों को भी अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो क्या होता, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कैल्शियम को भी बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, नाउ द न्यू नंबर ऑफ कैल्शियम वुड बी 2, सो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। एंड नाउ द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2 ऑन हेयर साइड एंड 2 ऑन हेयर साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते कि कैसे क्या चीज बैलेंस्ड है, कैसे क्या चीज बैलेंस्ड नहीं है। इन दिस वे सेम जो हाइड्रोजन का नंबर है, अब हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 2 × 2 4। RHS में हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी सो दैट ये क्या हो जाए 4 हो जाए। अब मुझे देखना पड़ेगा, दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। लेट अस से दोबारा से रीचेक करके देखते हैं। RHS पे Ca का नंबर है 2, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4, 2 × 2 4 एंड यहाँ पे 2 × 2 4, 4 + 4 8, यहाँ पे भी 8 है एंड यहाँ पे भी 6 and 2 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। कार्बन का नंबर, कार्बन इज 2 × C 2, इधर वाली साइड भी क्या है ये 2 × C 2, और हाइड्रोजन का नंबर भी क्या है 4 on both the sides, hence the equation is balanced। in this way we check the balancing of the reactions। और उसके बाद हमने काफी सारे एग्जांपल्स लेके इसको बैलेंस करना सीखा था। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था
types of chemical reaction. Let us now discuss about the types of chemical reaction and its important points. So the next topic is types of chemical reactions. The first reaction that we came up in this chapter is the combination reaction. The first kind of reaction is the combination reaction. Then we read about the decomposition reaction. Then we read about the displacement reaction. After that we came up with the double displacement reaction. Decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, then at last we dealt about the reduction and the oxidation reaction. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. एंड रिडॉक्स रिएक्शंस में हमने बहुत सारी और चीजें भी की थी. These are the reactions that are included in your syllabus. Apart from that, we have to discuss 3 more kinds of reactions, that is precipitation reaction, endothermic reaction and the exothermic reactions. Okay students, so let us now revise up the types of reactions. Types of reaction में सबसे पहले आता है हमारा combination reaction. Combination reaction occurs when 2 reactants combine to form a single substance. इसमें क्या होता है? Basically the 2 things combine to form a single substance, that is H2 plus O2, 2H2O. Students, okay, so next thing is decomposition reaction. Decomposition reaction is also known as the opposite of the combination reactions. Why? इसमें क्या होता है? Breakdown. One single substance is broken down into 2 or more substances. ठीक है, तो इस combine होता है. combination reaction में combination हो रहा है 2 substances से एक substance combine होके बन रहा है. और decomposition reaction में क्या हो रहा है? breakdown हो रहा है. Thus we can say these reactions are opposite to each other. Now हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि bonds जब form होते हैं, मतलब combination reaction के अंदर most of the times क्या होती है? heat generate होती है. We can write it up here as heat is generated. Heat is generated most of the times. Decomposition reaction में breakdown हो रहा है तो heat is used up. Heat is used up. Displacement reaction के अंदर क्या हो रहा है? Okay. ब्रेकडाउन मतलब कि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमेशा क्या होती है? हीट या एनर्जी यूज अप होती है.
हीट और वी कैन से एनर्जी जो है वो यूज अप हो रही है। सो इस जो ये वाली एनर्जी है, रिएक्शंस करने के लिए एनर्जी 3 टाइप्स में दी जा सकती है एंड दीज 3 काइंड्स आर, वी कैन गिव द एनर्जी बाय हीट, we can give energy by electricity and we can give energy by light। तो इसी बेस पे जो हमारे decomposition reactions थे वो 3 टाइप्स के थे। The first kind is the thermal decomposition, the next kind is the electrical decomposition, and then we had the photochemical decomposition। So that is the case. Now the next situation is the displacement reaction। Displacement reactions में हमने क्या किया था, we had read about the activity series। Activity series याद है, we had dealt about the activity series। इस activity series में हमें क्या देखने को मिला था, more reactive metal replaces the less reactive metal। more reactive metal replaces the less reactive metal। So this was the case। तो उसके अंदर हमने क्या देखे थे, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स देखे थे बहुत सारे, जिसके ऊपर हमने देखा था दैट हाउ द एक्टिविटी सीरीज इज इन्फ्लुएंस, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत ही इजीली जो पोटेशियम था दैट वाज एबल टू रिप्लेस एनी अदर एटम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने आपको ऐसे समझाया था कि सपोज करो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में जो स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो वीक स्टूडेंट को क्या करेगा, उठा के पीछे फेंक देगा। तो वी कैन से दैट उसने क्या कर लिया, उसको वीक स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इसमें एक सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी थी कि टॉपर ने क्या किया, टॉपर ने जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो शिफ्ट होके आया था आपके स्कूल में, उसने क्या किया, आपके क्लास के टॉपर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ही वाज मोर कैलिबर एंड इंटेलिजेंट दैन द टॉपर वन। तो उसने भी क्या किया, उस स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर लिया। इन दिस वे मेटल्स ऑल्सो वर्क लाइक दिस, बट मेटल्स ऐसे ही नहीं कि कोई भी किसी को, जैसे कि गोल्ड है, आज गोल्ड डिस्प्लेस नहीं कर सकता लेकिन कल को करेगा, नो। In the case of chemistry it is fixed and it is known as the activity series। जो सबसे ज़्यादा reactive metal है that is placed at the top and जो सबसे ज़्यादा least reactive metal है that is placed at the bottom of the activity series। तो उसके बाद जो double displacement reaction थी that is also as the displacement reaction। देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो चीज़ रिप्लेस करने वाली है वो अकेली पड़ी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज CuSO4 प्लस जिंक या CuSO4 प्लस Fe या फिर FeNO3 प्लस जिंक और एनीथिंग एल्स, वी कैन से NaCl प्लस K। मतलब ये जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ये चीज़ें हैं दे आर हैविंग नो एनायन एट ऑल विद देम, इनके पास कोई एनायन नहीं है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वी आर हैविंग टू थिंग्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिस मेटल ने रिप्लेस करना है उसके पास भी खुद का एनायन है एंड जिसके साथ रिप्लेस करना है उसके पास भी खुद का एनायन है। अब हमें पता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन,
तो वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन इन दिस वे एज H2O हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, वाटर बना लिया, एंड Na ने क्या कर लिया, Cl को ले लिया। तो ये क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हो रहा है, लेकिन इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस करने वाले एलिमेंट्स के पास खुद का कोई एनायन नहीं था, लेकिन इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसने रिप्लेस करना है उसके पास भी खुद का एनायन है। सो दिस इज द केस। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी के रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।